all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement towards anybody at all. 1 second. Leader of the House, please sit down. Go to your seats. Take your seats. Please take your seats. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. तो मुझे धन्यवाद देने से पहले ये भी ध्यान दीजिए कि मेरे पर आपके सदस्यों की कृपा रहे कि वो नियम माने। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है साहब, गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं। A member is saying we will do it. Is it this time? Mr. K.C. Venugopal, you are bound by the rules. The chairman is on legs. रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो। रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं। Please take your seat. Please. Sit down. Please. Mr. Manoj Jha, please take your seat. You are a professor. A professor has to exemplify conduct. Please, settle down. Mr. Tiwari, please settle down. Mr. Tiwari, please settle down. Please settle down. Please, Thakur Sahab, please, take your seat. Settle down. I am on my legs. Have I to remind the honorable members? If the chairman is on legs, I am on legs. I am on legs. Mr. K.C. Venugopal, I am on legs. Please sit down. Take your seat. Take your seat first, all of you. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Ranjan, take your seat. Honorable members, in this house, where I allow every member, and I can tell you, I neither look at this side nor at this side. All are equal before me. Please. Honorable Leader of the House. Honorable. Please. Bet. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. 1 second. Leader of the House, please sit down. Go to your seats. Take your seats. Please take your seats. Where have you got this culture? Please take your seat first. Speak from your seat. Go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat first. What are we doing? If where have you got this culture? Please go to your seat first. I will request the leader of the opposition to control his team and see that they are on the seats. Please go and take your seat first. Take your seat. Please take your seat first. Please take your seat. Which means, honorable members, what an outrage is seen. A member is saying, we will do it. Is it this time? Mr. K.C. Venugopal, you are bound by the rules. The chairman is on legs. थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, मुझे धन्यवाद देने से पहले यह भी ध्यान दीजिए कि मेरे पर आपके सदस्यों की कृपा रहे कि वो नियम माने। आपके
विरोध में या आपको कोई एम्बेरस करना ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं। आप रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। आप उतना एकदम गुस्से में आके, गुस्से में नहीं आता मैं। नहीं खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं। सुनिए, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है। वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं। फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता है। बोलिए तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हैं। सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब कुर्सी पर होते हैं। मैं जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ। बोलिए बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा नहीं। मैं एक सेकंड, मैं यदि अगर आपको रूल नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? हाँ, और नहीं सर, आपको नहीं कहूंगा कि आप रूल की अवहेलना कर रहे हो, रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो। रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं। रूल 267 जो कहता है उसका कुछ भी मानेंगे नहीं, और मेरे हाथ बांधते हो आप तो। नहीं सर, वो देखिए, आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं। लेकिन सर, हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है, वो भी सदन का ही काम है, आपका काम है। सिर्फ रूल बुक ही नहीं है, चंद प्रेसिडेंट्स लिखे नहीं जाते, तो आप कन्वेंशन आर देयर, तो वो कन्वेंशन के तहत हम उठा रहे हैं। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है साहब, गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार जो विषय उठा रहे हैं, इसके बारे में पहले भी उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। साथ ही साथ माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। मैं समझता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे? ये उन्हीं के समय, उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। इसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं
समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है। जो देश की समस्याएं हमने विरासत में ली और अब समय आ गया। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेस, आप जब बुला रहे हैं कमरे में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं ये सब इधर बात करना है। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन हैं, आप बुला रहे हैं, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करना, करने वाले प्रणब